તાજેતરમાં ગાંધીનગરના ભાટગામ પાસે નારાયણી હાઇટ્સ ખાતે પ્રસાર ભારતીના ચેરમેન અને વરિષ્ઠ પત્રકાર એ સૂર્યપ્રકાશના પુસ્તક ધ ઇમરજન્સી ઇન્ડિયન ડેમોક્રેસી ડાર્કેસ્ટ અવરનું વિમોચન કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે પ્રથમ સેશનમાં કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પુરુષોત્તમ રૂપાલાજી, ડોક્ટર એ સૂર્યપ્રકાશ તેમજ રાજ્યસભાના સાંસદ ડોક્ટર સુબ્રમણ્યમ સ્વામીએ વક્તવ્ય આપ્યું. પ્રસ્તુત છે એના સંકલિત અંશો. आज से 3 महीने पहले ये सोच आई कि एक सर्वे किया जाए और हमने गुजरात के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सर्वे किया. सर्वे के अंदर हमने सिर्फ 3 प्रश्न रखे हुए थे और 1255 लोगों के बीच में हमने ये सर्वे रखा. हमारे सर्वे का पहला सवाल हुआ करता था कि इमरजेंसी कब लगाई. आप नहीं मानोगे, हर 38 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट का जवाब सही था. हमारा दूसरा सवाल हुआ करता था उन विद्यार्थियों को कि इमरजेंसी का कार्यकाल कितने समय रहा. तो हर 55 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी का जवाब सही होता था. और तीसरा सवाल हमारा हुआ करता था कि इमरजेंसी क्यों लगाई गई. तो 255 में से एक का जवाब सही निकला. ये जान के हम लोगों को लगा कि ये ऐसा विषय है जो लोगों के मन में से मिटा दिया गया है, लोगों को भूला गया है. ये विषय को जीवन करने के लिए पूरे दिन का सेमिनार का आज आयोजन किया गया है. ये इनॉग्रल सेशन है, उसके बाद 2 टेक्निकल सेशन होंगे और शाम को बुक रिलीज का कार्यक्रम है. કટોકટી તો હમણાં આપણી સામે ગઈ. હું ભણતો હતો, હું કોલેજમાં હતો, મારો એક કો સ્ટુડન્ટ પણ આમાં બેઠો છે, એનું મને ગૌરવ છે. અમારો રામજી પકડાઈ ગયો હતો. એ શું કામ પકડી ગયા એ અમે તે વખતે નહોતા સમજી શકતા. પકડી ગયા છે એમ. બસ અમે પોલીસ સ્ટેશને જઈને પોલીસવાળા અરે બાજ્યા હતા કે ભાઈ અમારા રામજીને શું કામ પકડ્યો છે. ત્યારે આવી કઈ ખબર નહોતી, પણ પછી એણે અમને એવા ધમકાવેલા કે જો બીજી ત્રીજી વખત આવશો તમને પકડી જાઓ. એટલે અમે બંધ થઈ ગયેલા. આવી એ સ્થિતિ હતી. તો એના વિશેની કેટલીય વિગતો હશે જે આપણે નહીં જાણતા હોઈએ. તો એને જેમ છે તેમ એ આખા એ કટોકટી કાળને લોકો જાણે અને નવી પેઢી સમજે એ પ્રકારના સાહિત્યનું સર્જન થાય, એ પ્રકારની જે કંઈ બાબતો એને લગતી કરવી જોઈએ એ કરવા માટેનો એક રસ્તો તૈયાર થાય. એને મેઘ નિર્ઘોષથી આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ એવું હું માનું છું અને એને મારી શુભકામનાઓ આપું છું. તો એવી કેટલીય ચીજો હશે, એવી આ કટોકટી કાળની પણ હશે કે જેને પણ આપણને પણ નહીં ખબર હોય કે આપણી આસપાસ આટલું બધું ચાલી ગયું છે. તો આપણે જે સાચી વાત જ આપણા ધ્યાનમાં નહીં આવે તો અમુક વર્ષો પછી એની કોઈ ચર્ચા કરશે કે વિગત આવશે તો કોઈક લોકો એનું ખંડન કરી દેશે કે એવું તે ક્યાંય હોતું હોય છે. કટોકટી એ સ્વતંત્રતા સામેનો એક પડકાર હતો. આપણી આઝાદી પછી ગુલામીમાંથી એક તો માંડ માંડ આઝાદ થયા હતા, તો એની ઉપર એક બીજો એક પ્રયાસ થયો હતો કે આપણે પાછા ગુલામ થઈ જઈએ. એમાંથી લડવા માટેની જે આખી રચનાઓ થઈ હશે, એમાંથી જે કુરબાનીઓ થઈ હશે, એમાંથી જે ઇતિહાસ સર્જાણો હશે, તો કટોકટીના કાળને અને એના સેનાપતિઓને કલમનો સથવારો ન મળ્યો એટલે હજી એમ કહે છે કે અમારું આમ છે ને અમારું તેમ છે. એને યોગ્ય કલમનો તુલસીદાસી સથવારો પ્રાપ્ત થાય એવી હું મેઘ નિર્ઘોષને શુભકામનાઓ પાઠવું છું. આશા રાખું છું કે આપણી નવી પેઢીને આનેથી માહિતગાર કરવી અત્યંત જરૂરી છે. અત્યંત જરૂરી છે મિત્રો. લોકશાહીને ચલાવવાવાળા પરિબળો માટેના આ બધા પ્રેરણા સ્ત્રોત છે. એવી સામગ્રીને એકઠી કરીને એના ઇતિહાસને સાચવવાનું, મઠારવાનું, પ્રકાશિત કરવાનું અને પ્રસારિત કરવાનું એક સુભગ સોપાન ગુજરાતના પાટનગરમાં શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. મેઘ નિર્ઘોષને અષાઢના પ્રથમ દિવસે મેઘરાજાની ગડગડાટી જેવી શુભકામનાઓ સાથે આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર.
दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इमरजेंसी हमारे महान लोकतांत्रिक परंपरा पर एक दाग है। उसी इमरजेंसी की सालगिरह पर आयोजित आज के सम्मेलन में उस काले दिन को याद करते हुए हम शपथ लेंगे कि वो काला अध्याय दोबारा कहीं नहीं आएगा। हमें अपने देश के नौजवानों को और आने वाले हर पीढ़ी को भारतीय लोकतंत्र के इस छुपे हुए अध्याय के बारे में शिक्षा देने की जरूरत है। स्कूल के छात्रों को इमरजेंसी के बारे में बताने की जरूरत इसलिए है कि उन्हें लोकतंत्र की हत्या के दुष्परिणाम का ज्ञान हो सके। सन 1975-77 की इमरजेंसी में मौलिक अधिकारों का गला घोटा गया, लेकिन इसका काला इतिहास आज भी ज्यादातर युवाओं को मालूम नहीं है। शाह कमीशन का गठन इमरजेंसी की अत्याचारों की जांच के लिए किया गया था। जिनका जन्म इमरजेंसी के बाद हुआ उनको यकीन नहीं होगा कि तब क्या क्या हुआ था। ये तो इंटरनेट युग है। इंटरनेट, बेलगाम सोशल मीडिया और शोर मचाने वाले टीवी डिबेट के इस युग में नया जनरेशन को ये विश्वास करना बहुत कठिन हो सकता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसने आजादी की लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाई, उसी कांग्रेस ने इस देश में तानाशाही लाकर जनता के साथ अन्याय और अत्याचार किया। इमरजेंसी की मेरी स्मृति 26 जून 75 का कि उस भयानक सुबह की याद ताजा कर देती है। उस समय मैं बेंगलोर इंडियन एक्सप्रेस में करस्पॉन्डेंट था और कर्नाटक सरकार ने पहले दिन कर्नाटक के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को चीफ सेंसर बना दिया और उस दिन से ये आईजीपी साहब, उनके टीम में पुलिस इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और सूचना विभाग के अधिकारियों के साथ जो छोटे सेंसर के रूप में काम करते थे। इस तरह पूरे इमरजेंसी के दौरान इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मेरे एडिटर बन गया था। अब इमरजेंसी के समय में इमरजेंसी की कहानियां जो है, हजारों कहानियां हैं, लेकिन उसमें एक 2-3 कहानियों का उल्लेखन मैं आज करना चाहता हूं। पहला यह है कि नसबंदी। अब संजय गांधी ने तय किया कि सबको नसबंदी करवा दो, आबादी बहुत हो गया। तो ये करने का विधान क्या था? संजय गांधी मुख्यमंत्रियों को आदेश दिया, मुख्यमंत्री सब मंत्रियों को आदेश दिया, मंत्री सब ऑफिसरों को आदेश दिया और ऑफिसर्स सब छोटे छोटे कर्मचारी को आदेश दिया। ऐसे हो गया कि उस समय सरकारी जो ऑफिसर्स है और सरकारी कर्मचारी रास्ते रास्ते में घूम रहे थे किसी को पकड़ने के लिए, नाशबंदी के लिए, नहीं तो their salaries would be withheld and so many other benefits would be withdrawn. दूसरी बात, क्योंकि संजय गांधी ने वो बात कही, मुख्यमंत्रियों ने just to show that they are, each chief minister wanted to show that he is more efficient than the other chief minister. तो क्या हुआ, सरकार ने, केंद्र सरकार जो एक हर एक राज्य के लिए एक टारगेट रखा, जैसे कि 1975 में उत्तर प्रदेश को टारगेट था 75,000 स्टरलाइजेशंस। 76 में उसको केंद्र सरकार
4 लाख कर दिया। और वहां जो मुख्यमंत्री थे, he wanted to show that he is one of the best chief ministers in the country। और जब केंद्र सरकार इसको 4 लाख किया, उन्होंने खुद उत्तर प्रदेश का टारगेट 15 लाख कर दिया। ऐसे ही बिहार में जो 2 लाख था पिछले साल, वो 6 लाख हो गया। मध्य प्रदेश में 1.5 लाख से 7 लाख हो गया। उड़ीसा में 1 लाख से 5 लाख हो गया। तो ये मुख्यमंत्री ये टारगेट्स ऐसे बढ़ाते हुए पूरे सरकारी कर्मचारी उसका काम इधर ही लग गए थे। कई लोग मुझे बता रहे थे कि कुछ कर्मचारी हर एक डिपार्टमेंट में कुछ कर्मचारी को सरकारी अस्पताल आसपास they had let them work there so that they can get some sterilization cases। कर्नाटक में एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एक आदेश दे दिया कि पूरा कर्नाटक में जहां भी भिखारी है सीधा उनको ले जाके नसबंदी करवा के पुलिस अकाउंट में डाल दो। तो ये था नसबंदी का कहानी। ऐसे ही जैसे हमारा मित्र डीपी त्रिपाठी, आज वो नहीं आ पाए, उनका कहानी जो है और भी दिलचस्प है। और इमरजेंसी के समय वो एक डेमोन्स्ट्रेशन अरेंज किया। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद वो जब 1-2 दिन यूनिवर्सिटी बंद हो गई, तो संजय गांधी ने वहाँ एक डीआईजी था बिंदर के नाम, उनको कहा इसको पकड़ो अंदर डालो। तो बिंदर साहब ने सीधा गाड़ी लेके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी चले गए। और उनके साथ 2-3 और पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह थे। किसी को नहीं मालूम ये डीपी त्रिपाठी दिखता कैसे बोल के। तो चले अंदर और पूछने लगे। किसी ने कहा वो लड़का जो है वो दाढ़ी वाला वही है डीपी त्रिपाठी। सीधा वो अंदर डाल दिए और उनको मीसा में अरेस्ट करके ले गए। बाद में मालूम हुआ उस लड़के का नाम था पुरकायस्ता, वो डीपी त्रिपाठी नहीं था। लेकिन ये पुलिस डीआईजी जो है, इनको इंदिरा गांधी को जाके बताएं कि मैं ये तो जो हुआ है कुछ दिन पहले वो गलत है, इतना वो he didn't have the courage। As a result, Purkayastha was under Misa detention for 1 full year। DP Tripathi was caught after 3-4 months। Even after DP Tripathi was arrested, they did not release Purkayastha। ऐसे ही राजन केस है केरला में। ये रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कैलिकट के एक स्टूडेंट, किसी ने कहा कि राजन नाम के एक लड़का जो है वो ये नक्सलबारी मूवमेंट में बहुत दिलचस्पी ले रहा है। तो पुलिस वहाँ हॉस्टल में, किसी ने बताया यहाँ रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में एक राजन है। वो जाके उनको पकड़ लिए मार्च 1, 1976। तो मार्च 2, 1976 से राजन गायब हो गया। और करुणाकरन उस समय होम मिनिस्टर थे, उसके बाद मुख्यमंत्री बना। ये सब लोग बहुत केरला हाई कोर्ट में actually they gave false affidavits that Rajan is still that they have not arrested Rajan। उसका बहुत ये हुआ, and a lot of police officers were arrested and all that, but nobody eventually was found guilty of what is known as murder of Rajan। ऐसे ही कई कहानियां हैं। जैसे दिल्ली तिहाड़ जेल में सडनली अचानक 25-26 रात को इतने 2-3 हजार लोगों का गिरफ्तार हो गया, पॉलिटिकल लीडर्स को का गिरफ्तार हो गया। इसलिए तिहाड़ जेल में जगह नहीं था। तो Naveen Chawla was secretary to the lieutenant governor। He had become an extra constitutional authority because of his proximity to Sanjay Gandhi। तो ये तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट को बुलाया। सुपरिंटेंडेंट कहा आप और जगह नहीं है जेल में, we can accommodate 1273 prisoners and you have already arrested about 4000 people, there is no place। तो चावला ने कहा जगह नहीं है तो ऐसे करो,
एस्बेस्टॉस सेल्स बनाओ, एस्बेस्टॉस में छोटे छोटे कमरे बना दो। ये जून समय में दिल्ली का तापमान होता है 44-45 डिग्री। इसमें एस्बेस्टॉस में कोई एक दिन भी रह सकते हैं क्या? जब वो बताए, नवीन चावला ने कहा यू बेक देम, मतलब उसको वहां जला दो, कुछ भी हो, डोंट बॉदर अबाउट इट। दूसरा, और कुछ जो बचा है उनको ये पागल खाने में डाल दो। ये सब शाह कमीशन के सामने बहुत इसका जिक्र हुआ है, बहुत एविडेंस भी आया है, और ये सब लोग बहुत अत्याचार किए और लोकतांत्रिक व्यवस्था का पूरा खत्म कर दिया था। इसके अलावा कई जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर दिए गए, और जैसे मैंने कहा, कर्नाटक में आईजी ऑफ पुलिस वाज द चीफ सेंसर। जो भी हम लिखते थे वो आईजी ऑफिस को बेचते थे, और आईजी ऑफिस में इंस्पेक्टर बैठ के ये काट देते हैं और इसको बदलाव, जो भी, तो उस हिसाब से चलता था। जुडिशरी में भी कई जजेस थे जो हमारे मूलभूत जो अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करने में कामयाब नहीं रहे। इसमें एक था जस्टिस बेग, वो हेवियस कॉर्पस केस में उनका जजमेंट में वो कहता है, जैसे मधु दंडवते जी, अडवाणी जी, ये सब हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सब उनका मीसा डिटेंशन के विरुद्ध उनका जो अपील था वो आ गया था, और 4-5 जजों में सिर्फ जस्टिस खन्ना, he took the stand on behalf of the citizens of this country to protect our fundamental rights. दूसरे 4 जजेस, चीफ जस्टिस रे, जस्टिस बेग, चंद्रचूड़ और भगवती, ये चारों सरकार के तरफ उनका निर्णय दे दिया। उन्होंने कहा, so long as the emergency is in force, you cannot enforce your fundamental rights. तो जब अटॉर्नी जनरल ये पेश किया कोर्ट के सामने, जस्टिस खन्ना ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, अटॉर्नी जनरल साहब ये बताइए, क्या एक पुलिस स्टेशन में पुलिस इंस्पेक्टर किसी नागरिक को मार डाला तो कोई दे कैनॉट कम टू दिस कोर्ट फॉर रिलीफ? अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं हो सकता है, जब तक ये इमरजेंसी लागू है, यू कैनॉट एनफोर्स द राइट टू लाइफ, दैट इज आर्टिकल 21। इसके बावजूद जस्टिस रे, बेग, चंद्रचूड़ और भगवती सरकार के पक्ष में निर्णय दिया, और जस्टिस बेग ने कहा, जैसे मधु दंडवते जी और सब जो अपील किए थे उनको कहा, we understand that the care and concern bestowed by the state authorities upon the welfare of detainees who are well fed and well treated is almost maternal. वो जज कहा, इंदिरा गांधी जो है तुम्हारी माँ की जैसे तुम्हारा देखभाल जेल में कर रहा है, खाना पिए सब व्यवस्था हो गया है, तुम क्यों आ रहे हो ये अदालत के सामने? दूसरा उन्होंने कहा, इवन पेरेंट्स हैव टू टेक अप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव एक्शन अगेंस्ट दो चिल्ड्रन हु मे थ्रेटन टू बर्न डाउन द हाउस। जो बिगड़े हुए बच्चे हैं उसको ठीक करने के लिए माँ बाप हाथ में कुछ उठाना पड़ता है। ये जज बोल रहा है जैसे when he was taking away our fundamental rights. I thank all those who have come here today in response to our invitation, and I thank all the MISA detainees of 75-77. Thank you, sir, for being here today. We are deeply honored, and thank you very much. 20 महीने की इमरजेंसी काल में मैं 10 महीना हिंदुस्तान के अंदर था। उन 10 महीने जब मैं हिंदुस्तान में था तो मैं सरदार बन गया था, और जब यहाँ गुजरात आता था बम्बई से रेलगाड़ी से मणिनगर में उतरता था, तो गुजरात एक प्रकार से हमारे लिए एक ऐसी जगह थी जिससे हम अपनी ऊर्जा लेते थे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जो आंदोलन चली उससे वैसे भी इंदिरा गांधी भयभीत थी, और ये जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की
जून 12 तारीख 1975 को फैसला आया, इंदिरा गांधी को पद से उतरने के लिए मजबूर होने के लिए इस परिस्थिति पैदा हुई। हालांकि कृष्णा अय्यर उस समय वेकेशन जज थे सुप्रीम कोर्ट में, वो भी कम्युनिस्ट माइंडेड थे, तो उन्होंने उनको स्टे ऑर्डर दे दिया था और कहा कि चुनाव तुम पार्लियामेंट में भाषण बस सिर्फ दे सकते हो, वोट नहीं डाल सकते हो। तो उस आपात स्थिति में भी इंदिरा गांधी ने पद नहीं छोड़ा। और जब ये आंदोलन जोर पकड़ने लगी तो इंदिरा गांधी ने फिर ये सोचा कि जो पहले प्लान बनी थी उस प्लान के अनुसार संविधान में 352 धारा है, 352 आर्टिकल, उसमें उस समय लिखा गया था कि यदि कोई उपद्रव हो देश में तो आप इमरजेंसी लगा सकते हो, जिसमें जो लोकतंत्रीय हक है, आपकी अधिकार है, वो सस्पेंड हो सकती है। तो उसको लेकर उन्होंने उसको लगाई। 25 शाम को रामलीला ग्राउंड में एक बहुत विशाल सभा हुआ था, इतनी संख्या मैंने नहीं देखा। और नानाजी देशमुख संचालन कर रहे थे, पर नानाजी देशमुख ने मुझसे कहा कि तुम इसकी अध्यक्षता करो। अब मैं सबसे कम उम्र का था उस समय, यानी उनके तुलना में, जेपी और मोरारजी की तुलना में, फिर भी हम अध्यक्षता उस मीटिंग की थी। और उस मीटिंग में जेपी ने चेतावनी दी थी इंदिरा गांधी को, तुम इस्तीफा नहीं दोगे तो देश भर में हम आंदोलन करेंगे। उसको झूठा प्रचार करके कि उन्होंने आर्मी को, पुलिस को विड्रॉ करने के लिए कहा, ये सब करके उन्होंने सुबह इंदिरा गांधी ने रेडियो में अनाउंस किया कि देश में थोड़ी दिन के लिए इमरजेंसी लगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छोटी छोटी यूनिट सब जगह बनने लगे दोबारा, और वो एक नेटवर्क बनी, जिस कारण से हमारे देश में जो प्रचार विचारों का, लोगों को खबर पहुंचाना, ये सारी चीज़ें हुई। तो आज हम इसीलिए याद रख रहे हैं इमरजेंसी की कि दोबारा नहीं होना चाहिए। इतनी चरित्र की गिरावट हुई थी इमरजेंसी में, तो मैं आपको कल्पना ही नहीं हो सकती है। कितने लोग त्रस्त हुए, कितने परिवारों का नष्ट हुआ, कितने लोगों को नौकरी गई। ये सारी चीज़ों को आज किसी जगह में लिखा नहीं है। जहाँ तक हमारी इमरजेंसी को हटाने में सफल होने की 3 कारण हो सकते हैं। अच्छा, एक तो भूमिगत संगठन आरएसएस ने बनाई। आरएसएस की संगठन के कारण हमारे देश में लोकतंत्र वो बहुत दिन चला नहीं सके। दूसरा है कि विदेशों में जो अप्रवासी भारतीय हैं, उन्होंने जो हवा पैदा की, उन्होंने जो प्रचार की, कई लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। महेश मेहता का पासपोर्ट कैंसिल हो दिया, उनके परिवारों को धमकियाँ दिया हिंदुस्तान में। इस प्रकार से सहन करके उन्होंने अपने जो व्यस्त काम है वहाँ, उसको छोड़कर उन्होंने देश के लिए सेवा की। जो सबसे ज़्यादा आज बोल रहे हैं इंटॉलरेंस, डेमोक्रेसी, ये वो सबसे ज़्यादा झुके इमरजेंसी में। हम लोगों को अपने स्कूलों से अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि साहस होनी चाहिए, खड़े होकर अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए साहस होनी चाहिए। ये हमें सिखाना चाहिए, हमारे माता पिता भी सिखाने चाहिए अपने बच्चों को। आज मैं आप लोगों ने और बेल गांधी को मैं बधाई देता हूँ कि आपने इस प्रकार के एक सम्मेलन किया है। ऐसे सम्मेलन हर साल होनी चाहिए, अनेक जगहों में होनी चाहिए, तभी हम देश सुरक्षित रह सकती है। कहकर सबको धन्यवाद और नमस्कार।